Wonderful. Let's turn our Bibles to Matthew chapter 15 and verse 24. आइए मत्ती इसका 15 अध्याय 24वां वचन हम निकालेंगे। Matthew chapter 15 and verse 24. Very important topic. Very important because this is close to my heart. और ये बहुत ज़रूरी विषय है क्योंकि ये मेरे दिल के बहुत घनिष्ठ है। And I believe that this will definitely bless you as well. और मेरा विश्वास है कि ये आपको भी आशीषित करेगा। Praise God. Matthew 15 verse 24. Then Jesus said to the women, I was sent only to help God's lost sheep, the people of Israel. In other words, it says, house of Israel. Yes, can we have it in Hindi? उसने उत्तर दिया कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़े मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। इज़राइल की घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया है। These are the words of Jesus. ये यीशु मसीह के शब्द हैं। Now, people of God, today I want to talk to you about the plans and the purpose. What is the difference between plan and purpose? और मैं आपको बताने वाला हूँ कि योजना और उद्देश्य में क्या फर्क है। Yes, योजना उद्देश्य बोल सकते हैं मकसद. Right? We sing that song, right? मेरे जीवन का मकसद तो है. We sing that song, right? और हम इस गीत को गाते हैं। So what is the difference between plan and a purpose? और योजना और उद्देश्य में क्या फर्क होता है? Man can have plan, मनुष्य के पास योजनाएं होती हैं, but God can truly have a purpose for our life. लेकिन परमेश्वर का हमारे जीवन के ऊपर एक उद्देश्य होता है। And we are going to see the differentiation that how it impacts our life. और हम देखेंगे इसके भेद को कि वो हमारे जीवन में कैसे प्रभाव डालता Are है। you ready, church? क्या आप तैयार हैं? Yes. Are you only this side is ready? Are you ready? Yeah. Oh man, some of you are still on bed or what? Shake your neighbor and say, wake up. Come on. If the neighbor is sleeping, you better tap them properly and tell them wake up. Okay, worship team, I want the entire team to occupy these 4 chairs. Come on, fast. And these chairs also. Keep just one chair empty. Sit here. I don't want empty chairs. Yeah, sit here. Come here. Darshan, come here. Yeah. Bhavish, sit here. Wonderful. All right. Shuvangi, you are handling the laptop? Come, sit here. Yeah. All right. Now over here we see Jesus is talking to a woman over here. और यहाँ पे यीशु मसीह एक स्त्री से बात कर रहे हैं। And while he is having a conversation, Jesus is at a certain location which is not in the Jewish territory. और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब वो बातचीत कर रहे हैं तो वो एक ऐसी जगह पे जहाँ पे यहूदी वो भाग नहीं आता। Yeah, that territory is not Jewish because in those days there were certain territories where Jewish people were not staying. They were like Samaria. Samaria was not a Jewish territory. और हम देखते हैं उस समय में कि ऐसी कुछ जगहें थे जहाँ पे यहूदी लोग नहीं रहा करते थे। उदाहरण के तौर पे समरिया। And this, while he was there, और जब वो उस जगह पे था, he wanted to be hidden. He wanted to have his own time. तो वो छुपना चाहता था, वो खुद का समय बिताना चाहता You know, था। sometimes when a famous person appears somewhere, तो जो प्रसिद्ध व्यक्ति अगर कोई वहाँ पे आता है, and if they want to have their own time, they want to hide, they will tell that don't tell anyone that I'm here. और जब वो छुपना चाहते, अपने समय को बिताना चाहते, तो वो कहते हैं कि किसी को मत बताना कि मैं यहाँ पे हूँ। Sometimes I meet some people, मैं कुछ लोगों से ऐसे मिलता हूँ, and then they say, please don't put this photograph on social media. I don't want to let them know that everyone know that I'm here. और वो कहते हैं कि पास्टर जी मेरा फोटो जो है सोशल मीडिया पे मत डालिएगा कि मैं नहीं चाहता कि लोगों को पता चले कि मैं यहाँ पे हूँ। Yeah, there are sometimes because they want their private time, otherwise then people barge in over there. और लोग चाहते हैं कि वो सब चीजें प्राइवेट रहे, नहीं तो लोग वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। Now imagine Jesus is at this location and here one woman approaches to Jesus. और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह स्थान पे है और एक स्त्री वहाँ पे आती है। Can you read the verse 23? 23वां वचन हम पढ़ेंगे। पर उसने उससे कुछ उत्तर न दिया। Read the verse 22. Read the verse 22. और देखो 22, 23 and 24. Yes. और देखो उस देश में एक कन्नानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। Now this woman is asking help from Jesus. और यहाँ पे ये स्त्री जो है मदद की घोषणा कर रही है। Right? I'm creating a scene for you over here. This woman has come and she needs a desperate help from Jesus. और ये स्त्री यहाँ पे आती है और यीशु मसीह से मदद की मांग करती है। Yeah, next.
पर उसने उससे कुछ उत्तर न दिया और Jesus, wait a minute. Jesus ignored her. और यीशु मसीह ने वहाँ पे उसे नहीं देखा। Your Jesus, my sweet Jesus, ignored her. आपके यीशु, मेरे यीशु ने वहाँ पे उसको अनदेखा कर दिया। No praise the Lord to her. प्रेज लॉर्ड नहीं किया। Imagine. Oh सोचो। Jesus, you are the King of King and the Lord of Lord. आप कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु है। Oh, you are a compassionate God. आप एक तरस से भरने वाले परमेश्वर हैं, प्यार से भरे हुए पिता हो आप. But over here, when this woman is coming for a help, और जब ये स्त्री यहाँ पे मदद की मांग करती है, what does Jesus do over here? यीशु मसीह क्या कर रहे हैं यहाँ पे? A least expected thing from Jesus. एक ऐसी चीज कर रहे हैं जो कभी भी अपेक्षा नहीं की गई थी। Jesus, can you ignore me? No, he cannot. He is God. वो कभी इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि वो परमेश्वर है। Yeah, read it again. Yeah. पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया और उसके चेलों ने आकर उससे विनती कर कर कहा, हाँ। इसे विदा कर, क्योंकि हमारे पीछे चिल्लाती आती है। Yes, this lady is irritating us. ये स्त्री जो हमें परेशान कर रही है। Imagine, सोचो, someone is coming for help. कोई तो तुम्हारे पास मदद के लिए आता And है। Jesus is ignoring, and then all the Peter and all with all flexing bicep come. Hey, checking. The lady is coming. Just Jesus, make way for Jesus. Are you understanding? होता है ना ऐसा, right? Celebrity लोग आते हैं, right? अरे this lady is creating chaos. Security. This is what it is. ऐसे ही करते हैं वो लोग। Yeah, read it. क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती आती है। इसे विदा कर। उसने उत्तर दिया कि इज़राइल के घराने की खोई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। Now, people of God, परमेश्वर के लोग, why Jesus ignored this lady? यीशु मसीह ने स्त्री को क्यों यहाँ पे Have you अनदेखा ever कर thought दिया? about this? क्या आपने कभी सोचा इस बारे में? Jesus was rude over here? क्या यीशु मसीह यहाँ पे रूड थे? No, he was not rude over here. वो यहाँ पे कठोर नहीं थे। He was not rude. वो बिल्कुल कठोर नहीं थे। He says over here that I am called for the house of Israel. और यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि मैं यहूदी घराने के लिए बुलाया गया। इज़राइल के घराने के लिए आया हूँ मैं, यहाँ पे यहूदी लोगों के लिए आया हूँ मैं. And that's why, can you read that scripture now? 24. और उसने उत्तर दिया Yes. कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ के, that means इनको छोड़ के, मतलब इनके लिए ही आया हूँ मैं अभी फिलहाल के लिए. Now notice this thing. I'm going to give you a background. और मैं आपको एक बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। Before the resurrection of Jesus, यीशु मसीह के पुनरुत्थान से पहले the purpose and the focus of Jesus was house of Israel. यीशु मसीह का सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि इज़राइल का घराना, Are you understanding? Because Israelites were waiting for their Messiah, क्योंकि इज़राइली मसीह की तलाश में थे and sadly they are still waiting. और वो अभी भी उसकी तलाश में। Now listen to me. The purpose of Jesus, the focus of Jesus was that, oh, anyone out of house of Israel, I am not going to cater to them now. और यहाँ पे यीशु मसीह का उद्देश्य ये था कि इज़राइली घराने के अलावा मैं और किसी को नहीं देखूंगा। Imagine me telling to the leaders, go and preach the gospel only to Christians. और सोचो कि अगर मैं अगुओं को ये कहूँ कि सिर्फ मसीह लोगों को जाके वचन प्रचार करना, How will that sound? तो ये कैसे लगेगा? Why only Christian? We should preach the gospel to others, right? सिर्फ मसीह की, हम दूसरों को भी वचन प्रचार करना चाहिए। Yes or no, church? Right? So over here Jesus is saying only Jewish people, only Jewish people, only the house of Israel. और यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं सिर्फ यहूदी लोग और इज़राइली घराना। People of God, when you have a purpose in life, जब परमेश्वर के लोग आपके जीवन में एक उद्देश्य this होता है scripture reveals the purpose of Jesus और ये वचन बताता है यीशु मसीह के उद्देश्य के बारे में, after the resurrection of Jesus Christ, पुनरुत्थान के यीशु के बारे में, while he was taken up in heaven, जब वो उसे स्वर्ग में उठाया when the गया, work was done, जब वो काम पूरा हुआ, that's when he said, go out into the world and preach the gospel to every creature. तब जाके यीशु मसीह कहते हैं कि जगत में जाके परमेश्वर के वचन का प्रचार करो। I hope you're understanding what I'm trying to say. मैं आशा करता हूँ आप समझ पा रहे हैं। पुनरुत्थान के पहले यीशु मसीह का मकसद क्या था? इज़राइल के लिए था। पुनरुत्थान के बाद जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, जब स्वर्ग में लिया गया, और उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाकर बताओ सुसमाचार दुनिया के हर छोर पे। That's where the focus, then the horizon increased and changed over there. इतना समझा आपको?
Today I'm giving you a Bible study and preaching both. So please keep your eyes and ears open. और मैं आज आपको जो है बाइबल स्टडी और प्रचार दोनों कर रहा हूँ, तो अपने कान और अपने आंखें जरूर खुले रखें। My message is not started because I'm still not feeling that you are still getting the foundation right now. और मैं अभी तक अपने वचन को शुरू नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि अभी तक जो है आप इसे ठीक से समझ नहीं पा रहे People हैं। of God, when you have purpose in life, जब आपके जीवन में एक उद्देश्य होता है, you tend to have focus in life. तो आपके जीवन में एक उद्देश्य होना जरूरी है। And when you do not have purpose in life, और जब आपके जीवन कोई उद्देश्य ना हो, you tend to do everything in life. तो आप हर एक चीज को करने की कोशिश करते You हैं, become multitasking. आप मल्टीटास्किंग करते हैं, Nothing wrong in that. उसमें कोई गलत बात नहीं। But लेकिन there has to be a purpose. लेकिन आपके जीवन में एक उद्देश्य होना If you जरूरी do है। not have purpose, आपके जीवन में अगर उद्देश्य नहीं, if you do not have that focus, अगर आपके जीवन में वो you will end up doing everything which you're not called to do. तो आप हर एक चीज को वो करते हैं जिसके लिए आपको बुलाया नहीं गया है, And you will waste your time. और आप आपके समय को बर्बाद करते हैं। And I do not want single person sitting over that you waste your time. और मैं नहीं चाहता कि हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे बैठा है वो अपने समय को व्यर्थ करे। So people of God, I'm talking about purpose. मैं आपको उद्देश्य के बारे में बता रहा हूँ। When you have a purpose from God in your life, जब आपके जीवन में एक परमेश्वर के द्वारा उद्देश्य होता है, I am telling you that is where you will have a complete focus. तो मैं आपसे कहता हूँ तो आपके पास एक साफ उद्देश्य होता है। And over here Jesus says that I am sent for the house of Israel. और यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इजरायली घराने के लिए भेजा गया हूँ। Only a purpose with a focus, only a person with a purpose can say very strongly कि मुझे इनके लिए भेजा है फिलहाल के लिए. So clarity in mind. इतना साफ रहता है मन में। Many of us sometimes don't have any clarity in mind. बहुत से लोगों के मन में वो साफ स्पष्टता नहीं। The meaning of purpose means preordained. और Preordained means पहले से ही नियुक्त किया गया। समझ रहे आप मेरी बात को? मतलब कोई ऐसी बात जो आपके जिंदगी में पहले से एक नियुक्त किया गया है, असाइन किया गया है, और तब आप उस चीज को फॉलो करते हो। क्या आप समझ रहे हो मेरी बात को? That's how the purpose works. That's how the focus work in life. इस रीति से आपके जीवन का उद्देश्य कार्य करता है। Jeremiah chapter 1 and verse 5. यिर्मयाह की किताब इसका पहला अध्याय 5वां वचन। Jeremiah chapter 1 and verse 5. Let's have this scripture. आइए इस वचन को Every one of निकालें। us know the scripture. It's one of my favorite scripture. और सभी को ये वचन पता है, और मेरा ये साफ और पसंदीदा वचन है। Yes. Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctified you. I ordained you as a prophet to the nation. गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चिन्ह लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। ठहराया है, पहले से ही ठहरा है। बोलो पहले से ठहराया है। पहले से ठहराया है। People of God, the purpose is never assigned to our life after we are born. The purpose is given even before our parents meet each other. और हमारे जीवन का उद्देश्य जो है हमारे जन्म के बाद नहीं, लेकिन हमारे माता पिता के मिलने से पहले से बताया जाता है। Now what is a purpose driven life? और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हमें एक ऐसी जिंदगी कैसे जीनी है जहाँ पे हमारी जिंदगी में एक मकसद हो। कितने लोग चाहते हैं कि एक मकसद क्लियर होना जरूरी है हमारी जिंदगी का, राइट? I'm going to take you a little deeper right मैं आपको now. और गहराई में लेके जाना चाहता हूँ। Let's turn our Bible to Romans chapter 8 verse 29. आइए रोमियो की किताब इसका 8वां अध्याय 29वां वचन। What is a purpose driven life? और एक उद्देश्य से भरा जीवन क्या होता Because है? if you understand this, क्योंकि अगर आप इसे समझते हैं many things will be clear in your mind. तो बहुत सी चीजें आपके मन में स्पष्ट हो जाएगी। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Romans 8:29. For whom he foreknew, everyone say foreknew. For new, He also predestined to be conformed to the image of his son, that he might be the firstborn among many brethren. Yes. क्योंकि जिन्हें उसने पहले से ही जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि Yes, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया। बोलो पहले से ठहराया है। पहले से ठहराया है। Now what is the meaning of this और scripture? इसका मतलब क्या है? That means, I'll give you an example. मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। In foreign countries, बाहरी देशों में how many of you know that you can know the gender of a baby in the when the baby is in the womb? तो कितनों को पता है कि गर्भ में जब बच्चा होता है तभी आप उसका जो जेंडर पता कर सकते हैं? Maybe around 5th month. लगभग 5 If I'm महीने not के wrong. बाद।
right? 5 Around महीने के 5th or 6th month probably. 5वें या फिर 6वें महीने में। Now when the parent gets to know that the boy or girl is going to come, that they will know. और माता पिता को पता होता है कि लड़का या फिर लड़की होने वाली है, So they know what is coming. तो उनको पता है कि क्या आने वाला है। Remember, listen to me carefully. They know what is coming, उनको पता है कि क्या आने वाला है, but they don't know who is coming. लेकिन उनको नहीं पता कि कौन आने वाला Oh, है। I don't think so. You caught this. मुझे नहीं लगता कि आप ये समझ पाए हैं। When I was pulled out during my birth, जब मैं मेरे जन्म के वक्त में मुझे लिया गया, मुझे जब बाहर निकाला, डॉक्टर को ये पता था कि ये लड़का है, डॉक्टर को ये नहीं पता था कि एक अपोस्टल है। Are you understanding? Are you understanding? क्या समझ रहे हैं? Doctor knew a baby is coming. Yeah, he's coming. He's crying. He's crying. Yeah, okay. That's normal. और डॉक्टर को लगा कि बच्चा है, रो रहा है, नॉर्मल है। Or maybe when doctor must have done the sonography, he must have understood. Let's talk about India. He must be knowing. Boy is there, but they don't reveal it. और उनको सोनोग्राफी के टाइम पे पता चल गया कि हाँ लड़का है, लेकिन उन्हें बताया नहीं होगा। Yes or no? Right? But do they know that this boy, whom we are going to take out, he is going to be a pastor. लेकिन क्या उसे पता था कि He जिस is बच्चे going to को be an हम निकाल रहे apostle. हैं, He is going to govern churches. Are you understanding? क्या समझ रहे हैं? Are you understanding? क्या समझ रहे हैं? When Kunal must be out, जब कुणाल का जन्म हुआ, doctor must be knowing the baby boy is here. तो डॉक्टर को पता था कि लड़का हुआ है करके। Doctor doesn't know that he's a worship person who is going to be worshiping the Lord. लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो आराधक है जो आराधना करेगा परमेश्वर की। Are you understanding, church? So you know what is coming, but you don't know who is coming. तो आपको पता है कि क्या आ रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन आ रहा So है। that's my God. He preordains everything. तो ये मेरा परमेश्वर है जो पहले से आपको अभिषेक करता है। Are you understanding, church? क्या समझ रहे हैं The कलीसिया? moment God assigns purpose to your life, जब परमेश्वर आपके जीवन में एक उद्देश्य देता है, the real value of who you are is hidden in that. तो आपकी सच्ची कीमत जो आप है वो उसमें छिपी होती है। And when you find the purpose in your life, जब आपके जीवन के उद्देश्य को आप समझ you लेते हैं, put everything aside तो आप सब चीजों को साइड में कर and देते you हैं know this is my purpose in और my आप life. जानते हैं कि ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। Are you understanding, क्या church? समझ रहे हैं Are you कलीसिया? understanding? People of God, I have given this example many times. और ये उदाहरण मैंने बहुत बार दिया है। My plan and my desire was to be in some other field. और मेरा उद्देश्य ये था कि मेरी योजना ये थी कि मैं किसी और फील्ड में चले जाऊं। I know many of you know that I have told 100 times that I love traveling and that's why I wanted to be into aviation industry. और मुझे ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद था, इसलिए मुझे एविएशन इंडस्ट्री में ज़्यादा And by God's पसंद था। grace, He gave me decent height. So I was very confident about that. और परमेश्वर की दया से मुझे एक अच्छी हाइट मिली, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट Come था on, उस some चीज़ of you के are लिए। jealous right now. Are you understanding? क्या समझ रहे हैं? And I was so confident that, oh, this is my plan. Let's go to different institute. Let's go to Frankfurt, Avalon and Savlon and all everywhere. Right? और ये मेरी योजना थी कि मैं अलग अलग शहरों में, देशों में जाऊंगा, अलग अलग देशों में घूमूंगा। These are institutes. Okay? Are you understanding? But today I thank God that I did not go there and I didn't get selected over there. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वहाँ पे मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, वहाँ पे गया भी I नहीं मैं। cannot take Zoom meeting from cockpit. क्योंकि मैं प्लेन से जूम मीटिंग तो नहीं ले सकता था। I cannot take service. Oh, today I'm going to have live service. तो मैं लाइव सर्विस जो है प्लेन से नहीं ले सकता। So I wouldn't have said praise the Lord. I would have said ladies and gentlemen. I would have said like that. तो मैं प्रेज ऑल नहीं कहता वहाँ पे। Are you understanding, church? So people of God, there's a difference between plan and purpose. I found my purpose that this is what I'm called to do. और मेरा उद्देश्य मुझे पता चला कि इस चीज के लिए मुझे बुलाया And गया। once I found my purpose, this is my purpose, this is my focus. I left everything and I'm focusing on what I'm called to do right now. और जब मुझे मेरा उद्देश्य पता चला तो मैं साफ रीति से उस पर ध्यान लगाया कि परमेश्वर ने मुझे जो दिया उसमें मैं काम करूं। What is your purpose in life? आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? What is your main core purpose in life so that you can be focused in life? आपके सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है जिस पे आप ध्यान लगा सके? People of God, it's a matter of worry for many people. और ये चिंता की बात है सभी के लिए। Can I tell you one thing? मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ। You can go after your dream and forget and miss your purpose. आप अपने सपनों के पीछे भागते हुए आप अपने उद्देश्य को जो है छोड़ सकते हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। आपका सपना है कि मुझे ये करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, वो सपना है। लेकिन उस सपने के पीछे भागते भागते आप आपके उद्देश्य से चूक सकते हो अगर आपका उद्देश्य आपको पता नहीं है, आपका मकसद अगर आपको पता नहीं है, और आपका फोकस हट जाएगा।
और उसके बाद कुछ समय के लिए आप आपके सपने में प्रवेश करोगे, आपके ड्रीम में प्रवेश करोगे। आपको बहुत बहुत एकदम यश चोपड़ा के मूवी जैसा बैकग्राउंड लगेगा आपको वहां पे कुछ दिनों के लिए, लेकिन उसके बाद आप धीरे धीरे ड्रेन हो जाओगे वहां पे। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं? Because that's not the real purpose of your life. क्योंकि वो आपके जीवन का सच्चा उद्देश्य नहीं है। I'm not just talking about ministry. I'm not just saying that holding a mic is only purpose in your life. और मैं ये नहीं कह रहा कि माइक पकड़ के बोलना यही आपके जीवन There का can be उद्देश्य different purposes in your life. आपके जीवन के अलग अलग उद्देश्य हो Maybe you're सकते हैं। called to do a business. आपको बुलाया गया होगा बिजनेस करने के लिए। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं? Maybe you're called to heal people, to become a doctor, to do something that is your purpose of life. और आपको लोगों को चंगाई के लिए डॉक्टर के लिए बुलाया है, ये आपके जीवन का उद्देश्य है। Maybe you are an engineer. Maybe God has called you to create something creative. और आप इंजीनियर हो सकते हैं, तो परमेश्वर ने आपको कुछ चीजें बनाने के लिए बुलाया Maybe होगा। that's your purpose. उसको एक उद्देश्य के तौर पे देखो। Hello, are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? So what is the purpose and how to live a purpose driven life? तो आपके जीवन का उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य से भरे जीवन में कैसे जीना है? Sometimes you can start a business and forget why you started. और आप शायद बिजनेस शुरू कर सकते हैं और आपको पता ही नहीं होगा कि वो बिजनेस क्यों शुरू किया है। Yeah, it happens. Sometimes people start something and after gradually they forget why they started. और लोग जो है बिजनेस या फिर कुछ चीजों को शुरू कर देते हैं और फिर भूल जाते हैं कि क्यों शुरू किया था। Sometimes you can get healed and you will forget why God healed you. There is a purpose behind your healing. और लोग परमेश्वर जो है आपको चंगाई देता है, फिर आप भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने चंगाई क्यों दी, उसके पीछे का उद्देश्य भूल जाते हैं। Are you understanding? If God has healed you, that means through your healing, someone else may also get healed through your testimony. But you keep it to yourself. और क्योंकि आप परमेश्वर ने आपको चंगाई दी है, तो आपके गवाही से दूसरे लोग भी चंगाई पाने वाले, लेकिन आप उसे थामे रखते हैं। Are you understanding, church? क्या समझ रहे परमेश्वर के And when लोग? you lose that purpose, you inherit the emptiness in your life then. और जब आप उस उद्देश्य को खो बैठते हैं, तो आप अपने जीवन में खालीपन महसूस करते हैं। Remember one thing, there is difference between God's plan and God's purpose. और परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की योजना और उसके उद्देश्य में फर्क है। How many of you know the story of Joseph? कितनों को यूसुफ की कहानी पता है? Yeah? If you have heard it for the first time, let me tell you, Joseph is a man in the Old Testament. और यूसुफ एक पुराने नियम का है कि व्यक्ति हम यहाँ पे देखते हैं। His purpose was to save the nation. और उसका जीवन का उद्देश्य था कि वो राष्ट्र को बचाए। Yes or no? His purpose was to become a blessing for his nation, to become a blessing for his family. और वो अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए जो एक आशीष का कारण बने, वो उसके जीवन का उद्देश्य था। Joseph's purpose was not that he reached palace. और यूसुफ का उद्देश्य ये नहीं था कि वो उस राजघराने में, उस भवन में जाए। It was the preservation. It was actually to be useful in the difficult time. और वो उस आदत से बन गई थी उस कठिन समय में उसे। But the palace was just a plan. लेकिन वो राजघराना, उस राजभवन जो बस एक प्लान था। I repeat once again. यूसुफ को बताया गया कि तू एक दिन ऊंचे पद पर रहेगा, तेरे भाई तेरे सामने झुकेंगे। वो सब बड़ा पिक्चर बताया यूसुफ के सामने, और बेचारा खुश हो गया एकदम। और खुश हो जाने के बाद उसको ये नहीं पता, फिर उसके बाद उसे जेल में जाना पड़ा। वो सपने में नहीं बताया था परमेश्वर ने, राइट? उसको पोतीफर के वाइफ का सामना करना था, वो सपने में नहीं बताया था परमेश्वर ने। Now can I ask you, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ, उसको पोतीफर के पत्नी का सामना करना पड़ा, उसे जेल में जाना पड़ा, उसे गड्ढे में जाना पड़ा, क्या ये परमेश्वर का प्लान था कि उसके बच्चे को टॉर्चर करे? Oh, come on, be honest. Some of you say it was a plan of God. No, my God will not plan to torture. पर मेरा परमेश्वर ये प्लान नहीं करेगा कि वो आपको टॉर्चर करे। Are you understanding? But was it a purpose of God? Yes, there was a purpose behind that. पर परमेश्वर का उद्देश्य था कि उसके पीछे, उस जीवन में मकसद था उस चीज के पीछे। आप जब इंटरव्यू दे रहे हो, सिलेक्ट नहीं हो रहे हो, प्लान है परमेश्वर का कि आप सिलेक्ट ना हो, या मकसद है कि कुछ अच्छा रखा हुआ है? Are you understanding, church? Are you understanding? आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, वो फेल हो रहा है, क्या ये परमेश्वर का प्लान है कि वो फेल हो? क्या मकसद है कि कुछ तो अच्छा रखा है, इसलिए आप दोबारा ट्राई करो? हेलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या समझ रहे कलीसिया? अब आपको समझ आ रहा है प्लान एंड पर्पस। आपको कुछ सिचुएशन का सामना करना पड़ा, आपको गालियां खानी पड़ी, क्या वो प्लान था परमेश्वर का? माय गॉड विल नॉट प्लान लाइक दिस कि आपको गाली खानी पड़े, लेकिन उसके पीछे मकसद है। बोलो मकसद है। मकसद है। पड़ोसी को बोलो उसके पीछे मकसद है। उसके पीछे मकसद है। परमेश्वर, अरे ये परमेश्वर की योजना है कि मैं गाली का, अरे
योजना नहीं है। क्योंकि अगर मैं मेरे बच्चे का पिता हूं, मैं घर पे बैठ के कभी ऐसे प्लान नहीं करूंगा आज मेरे बच्चे को मैं गालियां खिलाता हूं, चलो। नो, वुड यू प्लान दैट? क्या आप ऐसी योजना करेंगे? नो। नहीं। इफ यू आर, अगर आप ऐसे करते यू हैं नीड प्रेयर्स तो आपको प्रार्थना की जरूरत एंड अ है वन ऑन वन विद मी। और आपको मुझसे मुलाकात करने की जरूरत है। आर यू अंडरस्टैंडिंग चर्च? क्या समझ रहे कलीसिया? But if your child has to go through that, लेकिन अगर आपके बच्चे को उसमें से गुजरना and पड़ता है, when you know that you have created something very good for your child, that means there is a purpose behind every pain. तो Hallelujah. जब आपको पता है कि आपके बेटे के लिए, आपके बच्चे के लिए कुछ अच्छा आपने रखा है, तो उसके पीछे दर्द जो है उसमें भी उद्देश्य होता वो है। घाट से जाना पड़ेगा। घाट ये परमेश्वर का प्लान नहीं है, लेकिन मकसद है उसके पीछे। बोलो मकसद है। मकसद है। Hallelujah. Oh, I don't know how many of you are understanding this. मैं नहीं जानता कितने लोग इसे समझ पा रहे हैं। What is the purpose of tree? Can I have some random answers from you? एक पेड़ का पेड़ का मकसद क्या उद्देश्य क्या होता है? है? पेड़ का मकसद क्या होता है? हाँ, to give you shade. Okay, क्या है? To give us shade and fruits. Okay, to give us shade. Okay, all right. One more answer. Any? Huh? Oxygen. Okay, oxygen. All right. One more answer. One more, sister. What is the purpose of a tree? क्या है? Tree का काम क्या है? बोलो. Oxygen. Oxygen. Okay, oxygen. All right, sister. What do you think? Bear fruits. Ah, yes. Now listen to me carefully. जी ध्यान से सुने। To give shade. छाव देता है। Yes, agreed. Yeah, to give shade. If you need furniture, अगर आपको फर्नीचर की जरूरत है do you need trees? तो आपको पेड़ की जरूरत है। हाँ, लकड़ी ऊपर से फेंकेगा नहीं ना। कहाँ से आता है? पेड़ों से। पेड़ से आता है। Okay. Oxygen ऑक्सीजन is also one of the important, ये भी जरूरी चीज है। what you can say, important function of tree, or important purpose of important thing. और सबसे जरूरी मकसद पेड़ का। But what is the main purpose of tree? लेकिन सबसे जरूरी मकसद क्या है? Which 2 or 3 of you have given the answer already. जो 2 या 3 लोगों ने पहले से बता चुके To हैं। bear fruit. ताकि वो फल बना To bear सके। fruit. फल बना सके। The primary purpose of a tree is to bear fruit. और पेड़ का सबसे बड़ा उद्देश्य, मकसद यही है कि वो फल बनाए। बाकी all things are a byproduct of the purpose. बाकी सब चीजें उसके साथ आ जाती है। Are you understanding? So providing shade is a byproduct. और छाव वो देता है, वो उसके साथ आ जाता है। People of God, many of us call byproduct as a main purpose of our life. और बहुत सी चीजों से बाय प्रोडक्ट करके बुलाई जाती है जो हमारे जीवन में आ जाती है। Don't mix the purpose and your byproducts together. और परमेश्वर के उद्देश्य को और आपके बाय प्रोडक्ट्स को जो है एक साथ मत कीजिएगा। Are you understanding? क्या समझ church? रहे हैं? People of God, are you understanding? Oh, I'm taking you somewhere. Now I'm coming to the main course right now. और अभी मैं आपको मेन कोर्स की ओर लेके Tell your जाऊंगा। neighbor, this was starters. ये सिर्फ स्टार्टर्स था। Now keep your eyes and ears open properly. तो अपनी आंखें और आपके कान को खुले रखें। John chapter 15 and verse 16. यूहन्ना इसका 15 अध्याय 16 वचन। John chapter 15 and verse 16. I want everyone to please get this word. Dubai, can we read John chapter 15 and verse 16? यूहन्ना इसका 15 अध्याय 16 वचन। Yes, someone from Dubai, read it. Yes. The book of John chapter 15 and verse 16. Yes, read it. Can you read it again? You have not chosen. Ha. You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring fruit. Read it slowly. Read it slowly. You did not choose me, but I chose you and what? Ordained you. Ordained you. Now listen to me carefully. Jesus says, I chose you परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तुम्हें चुना है and I ordained you. और तुम्हें अभिषेक किया है। What is the meaning of ordination? और अभिषेक का मतलब क्या होता है? What is the meaning? You know how when we ordain a pastor, आपको पता है कि जब किसी पास्टर का ऑर्डिनेशन होता है, what is the real meaning of that? उसका सच्चा मतलब क्या होता है? An ordination means lining up
with your purpose. अभिषेक का मतलब है कि आपके जीवन का आपके उद्देश्य के साथ उसे जोड़ा जाना। That means you are called to do something, इसका मतलब यह है कि आपको बुलाया गया उस चीज को and करने when के लिए। you are ordained, you are lined up with that purpose. और जब आपका ऑर्डिनेशन होता है तो वहां पे आप उसके उद्देश्य के साथ जुड़ जाते When हैं। I was ordained as a pastor, और जब मेरा ऑर्डिनेशन हुआ पास्टर के रूप में, I was called to do that even before I was formed in mother's womb. और माता के गर्भ में होने से पहले मुझे उस चीज के लिए बुलाया But when I was था। ordained, लेकिन जब मेरा ऑर्डिनेशन हुआ that I was aligned with the purpose of my life. तब जाके मैं यहाँ पे था, मुझे खींच के यहाँ पे लेके आया। क्या आप समझ रहे हो? लेकिन प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हें पहले से ऑर्डेन करके रखा है। मतलब उद्देश्य, हमारी जिंदगी का मकसद, हमारी जिंदगी का प्रभु ने पहले से देखे रखा है। क्या आप समझ रहे हो मेरी बात को? Are you understanding? Yes. Appointed you that you should go and bear fruit. Now here we see when, can you finish that reading? Yeah. Hindi, read it. तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारे फल बना रहे Hallelujah. कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। Now people of God, when you are ordained, जब आपका ऑर्डिनेशन होता है that time you have to be very careful with your own plans. तो आपको आपकी योजना के साथ बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। Because if you are carried away with your own plans, you may miss for what God has ordained for you. क्योंकि अगर आप आपकी खुद की योजनाएं लेके चलेंगे तो परमेश्वर के उद्देश्य को आप खो बैठेंगे। Are you understanding, church? क्या समझ रहे कलीसिया? When you have given the focus in your life, purpose in your life, and if you are high on your own plans, और जब आप परमेश्वर ने आपको मकसद दिया आपके जीवन का और आप आपकी योजना में ही फंसे पड़े हैं। the word ordained means called for a specific thing, not general, specific. और अभिषेक या फिर ये जो ऑर्डेन शब्द है इसका मतलब यह है कि आपको एक खास चीज के लिए बुलाया बोलो गया है। खास चीज, खास चीज, specialist. एक खास है। Now I want to ask you, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, whenever someone is specialist in some field, जब कोई खासियत भरा ऐसे व्यक्ति कोई फील्ड का आता है, जब कोई फील्ड में कोई स्पेशलिस्ट है, उसका जो इम्पोर्टेंस है वो भी अलग होता है। क्योंकि अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट में फ़र्क है। एक अकाउंटेंट का फ़ी अलग होता है और सीए का फ़ी अलग होता है, क्योंकि सीए इज स्पेशलिस्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आप नॉर्मल डॉक्टर के पास जाओगे उनका फ़ी अलग होगा, लेकिन आप स्पेशलिस्ट के पास जाओगे उनका कंसल्टेशन चार्जेस अलग होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? So my God has not called you just for general thing. There is something special which God has put inside you. तो मेरे परमेश्वर ने आपको साधारण चीज के लिए नहीं लेकिन एक खास चीज के लिए आपको बुलाया गया है जो आपके अंदर है। Are you understanding, क्या आप church? समझ रहे हैं कलीसिया? A normal, engineer एक साधारण सा इंजीनियर and a specific engineer, let's say AI engineer, या फिर एक खास इंजीनियर जो एआई इंजीनियर होते हैं, or maybe some, I don't know much about that field, but there are many important specific specialists in that thing. और उसमें बहुत से जो अलग अलग खासियत होते हैं So their charges are different because they are specialists. और उनकी कीमत अलग होती है क्योंकि वो स्पेशलिस्ट So होते हैं। tell your neighbor you are specialist. तो पड़ोसी से कहे आप स्पेशलिस्ट हैं। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं? Because a specialist have a special knowledge, specific knowledge, not a general knowledge. और स्पेशलिस्ट के पास एक खास जो है ज्ञान होता है, साधारण नहीं होता वो। आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाओगे जो आपकी हृदय की बीमारी है, जिसको सिर्फ जनरल नॉलेज है, जाओगे क्या? मैं विश्वास से जा रहा हूं, अरे नो। बट जब आपको पता चलेगा ये स्पेशलिस्ट है, मेरा जो प्रॉब्लम है मैं उस डॉक्टर के पास जा रहा हूं क्योंकि वो स्पेशलिस्ट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तब आप कॉन्फिडेंटली जाओगे वहां पे। सो माई गॉड हैज कॉल्ड यू फॉर स्पेशल पर्पस इन योर लाइफ। तो मेरे परमेश्वर ने एक खास मकसद से आपको बुलाया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग, चर्च? क्या आप समझ रहे हैं कलीसिया? Oh, Rakalamantes. Many people sometimes I ask people, oh, so brother, what's the plan? और मैं बहुत से लोगों से पूछता हूँ कि आपकी योजना क्या है? What's the plan of आपकी your क्या life? योजना? I don't know. Maybe let's see. God takes me somewhere. और वो कहते हैं कि प्रभु के दास मुझे नहीं पता कि परमेश्वर जहाँ लेके जाना है लेके जाए। पता नहीं प्रभु देखते हैं कहाँ पर लेकर जाएगा। अरे तुम्हारे जवाब ऐसे है, तुमको क्लैरिटी नहीं है। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं? Sometimes I get, what's the plan? Oh, no, now 3 o'clock I'm going, now 5 o'clock. No, I didn't ask you about the day plan. I'm talking about the plan of life.
और मैं आपको दिन की योजना के बारे में नहीं लेकिन जीवन की योजना के बारे में पूछ रहा हूँ. Are you understanding? क्या समझ रहे हैं People of कलीसिया? God, after today's service, you will literally sit, think, and pray that what will be the next 5 years of my life. और आज की सभा के बाद में आज आप बैठ के प्रार्थना करोगे कि परमेश्वर मेरे अगले 5 साल की योजना You क्या know, when है. I met our leaders, और जब मैं मेरी अगुओं से मिलता हूँ I gave them a homework for the next 6 months. तो उनके लिए मैं होमवर्क देता हूँ अगले 6 महीने के लिए. You know, for the next 6 months, what are you supposed to do? तो मैं उनको बताता हूँ कि अगले 6 And महीने how के लिए will आपको our क्या करना है. church look like in the next 6 months? और उनको बताता हूँ कि अगले 6 महीने में अपनी कलीसिया कैसे But when I दिखेगी. say to them about the next 6 months, I have to be the clarity for the next 6 years. Then I can talk about the next 6 months. और जब मैं उनसे ये बातचीत Are you करूँ तो understanding? वहाँ पे मुझे 6 साल का वहाँ पे स्पष्टता होना जरूरी है. आपको अगर पूछे, अरे बहने दो दिन के बाद क्या करने वाला मेरे को नहीं पता यार, तू क्या पूछ रहा है, अपने कॉन्वर्जेशन को चेंज करो. Are you understanding? हम लोग मजाक मजाक में लेते कभी, अरे क्या तू 2-3 साल का मुझे कल नहीं पता क्या होने वाला है. Oh my God, that's sad. ये नाराजगी की बात है. Are you understanding? क्या समझ रहे हैं? Tell your neighbor, have focus. पड़ोसी से कहे कि फोकस रखो. Have focus. Are you understanding, church? How many of you are understanding this? People say, I don't know, I don't know. और लोग कहते हैं कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता. I'm telling you, your life is not a gamble. और मैं आपसे कहता हूँ कि आपका जीवन जो एक जुआ के समान है. हाँ, जुआ के समान नहीं कि ए, चल बाजी लगा के देखता हूँ, दिल 4 बजे क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, उसके बाद देखते हैं. You should have a purpose in life. आपके जीवन में एक उद्देश्य होना जरूरी है. People of God, and how this purpose gets unlocked. और ये उद्देश्य मकसद कैसे पूरा Can होता I है? give you the key? क्या मैं आपको चाबी Can दे I सकता give you the हूँ? key? Romans 8 verse 29. रोमियो की किताब इसका 8वां अध्याय 29वां वचन. I'm giving you the master key, not just the key. और मैं सिर्फ एक साधारण सी चाबी नहीं लेकिन मास्टर की एक चाबी दे रहा हूँ. Yes. Romans 8:29. Read it. क्योंकि जिनने उन्हें उसने पहले से ही जान लिया है, उसने उसे पहले से ही ठहराया भी हाँ, है. जिसने उसने पहले से ही जान लिया. किसे पहले से जान लिया है? यीशु मसीह को. अगर आप यीशु मसीह को जानते हो तो ये जान लो कि यीशु मसीह ने आपको पहले से ही कुछ चीजों के लिए ठहराया है. मतलब उसने मकसद दे दिया है आपको. जो कोई यीशु मसीह में है उसके पास मकसद है. Jesus is the master key. यीशु Oh, मसीह. you are not happy? I think so. शायद आप खुश नहीं. You don't have Jesus in your life? कि आपके जीवन में यीशु नहीं है. How many of you have Jesus in your life? कितने लोग के जीवन में यीशु. That means He will unlock that purpose of your life. इसका मतलब ये है कि वो आपके जीवन के उद्देश्य को खोलेगा. Are you understanding, क्या church? समझ रहे कलीसिया? Are you understanding? I'm taking you somewhere right now. मैं आपको यहाँ पे किसी और कितने लोग के स्कूल में टीचर लोगों ने पूछा था कभी कि बड़ा होके तुम्हें क्या बनना है? पूछा था. कितने टीचर लोग पूछते हैं या बड़ा होके क्या बनना है? पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर, राइट? होता है ना ऐसा ये सब. यस. मुझे भी पूछा गया था क्या बनना है. Your temporary dreams sometimes can take you away from the purpose of God. आपकी टेम्परेरी जो योजना है वो आपको परमेश्वर के उद्देश्य से दूर कर सकती है. What makes you feel good? हो आपको हा 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 करने के लिए तरसाएगी फिर बाद में. What is ha ha ha? You know, that's ha ha वाला smiley. Because what feels excited now? क्योंकि जो आपको अभी उत्साहित करता है Temporary dream वो एक टेम्परेरी का स्वप्न है. can slide you away from your ultimate purpose of God. और वो आपको परमेश्वर के उद्देश्य से बहुत दूर कर सकता है. Are you understanding, church? Sometimes a dream can be a biggest temptation. कभी कभी आपके स्वप्न ये सबसे बड़ी परेशानी आपके लिए बन सकते हैं. People of God, some of the things happen in your life and you don't like it sometimes. और कुछ चीजें आपके जीवन में ऐसी होती है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं होती. It's not because it is the plan of God और इसलिए नहीं क्योंकि परमेश्वर की योजना है. that He wants to hurt you. ये इसलिए नहीं कि वो आपको परेशानी देना You know, चाहता my है. wife, she wanted to do her masters in USA. और मेरी पत्नी को मास्टर्स करना था यूएसए में. And when that thing was not happening, और जब वो उनके लिए वो चीज नहीं हो रही थी man, she was hurt badly. और वो बहुत वहां पे दर्द से भर गए थे. हाँ, पूछो मुझे कभी तो. Are you understanding? And when you carry that tension, और जब वो टेंशन आप लेके चलते हैं and people of God, their day is ruined. You know, when you see other people's story, convocation in Dallas Baptist University. Oh, I was supposed to go there. मुझे वहां पे जाना था. Are you understanding? Huh? I was supposed to be there. My dream, man, your dream would have distracted you.
मेरा सपना था वहां पे, लेकिन वो सपना आपको भटका सकता था। Are you understanding, people of God? But the purpose, she felt that why God is showing his back to me. और वो कह रहे थे कि परमेश्वर अपनी पीठ मुझे क्यों दिखा रहा है, My dream is messed. और मेरा स्वप्न बिगड़ चुका। But the purpose was that not to go and study, but to have dollars from there. लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य ये था कि वहां से पढ़ाई नहीं, लेकिन वहां से डॉलर्स Don't लेके आना। spend in rupees when you can earn in dollars. रुपीज में वहां पे मत गवाओ, अगर तुम डॉलर में कमा सकते हो। Hey, are you understanding, क्या church? समझ रहे हैं परमेश्वर की Are you लोग? understanding, church? So some of you are going through some things and you are hurt somewhere. तो आप कुछ चीजों से गुजर रहे और आप उसमें बहुत And you दुखी। doubt the plan. Is this the plan of God? No, this is not the plan to hurt you, but there is a purpose behind that. और परमेश्वर से आप पूछते कि क्या आपकी योजना है, लेकिन ये परमेश्वर की योजना नहीं, लेकिन उसके पीछे एक उद्देश्य है। When your tire is punctured और आपका टायर पंक्चर हो चुका and you है have to go somewhere और आपको कहीं पे जाना है, and you say, why God now? Why at this time? और आप कहते हैं कि ये क्यों हो गया परमेश्वर, ये अभी क्यों होना था। No matter how much holy you are, भले आप कितने भी पवित्र क्यों ना हो, for some moment that holiness goes for a toss. कुछ क्षण के लिए वो पवित्रता भी छोड़ के चली जाती है। Yes, you're so holy, people. No honesty in this house. But what if that tire puncture is saving you from some accident which was about to happen? लेकिन क्या होगा कि अगर वो टायर पंक्चर हुआ है तो आपको एक्सीडेंट से बचा रहा है। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं? Sometimes you're delayed somewhere to go to reach somewhere. आप कहीं पे देरी से पहुंचते हैं, What if God is saving you from something? लेकिन क्या होगा कि परमेश्वर आपको कुछ चीजों से बचा रहा है। So tire puncture is a plan of God? No. But it's a purpose behind that. Tell your neighbor, there is a purpose behind something. पड़ोसी से कहे उसके पीछे एक मकसद है, There is a purpose behind your pain. आपके दर्द के पीछे एक मकसद है। Hallelujah. Life is not a coincidence, I'm telling you, people. मैं of आपसे God. कहता हूँ कि जीवन से भी कोई When you are in purpose of God, there is no such thing called coincidence. अरे ये इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक नाम की चीज नहीं होती प्रभु के राज्य में। सब कुछ उसके हिसाब से चलता है। समय तो ये इत्तेफाक वर्ड भूल जाओ। Are you understanding? अरे जब मैंने तुमको देखा, इत्तेफाक से मुझे कुछ हुआ, ब्रो, that's not ittifaq. There is nothing called ittifaq. Don't force me to say something over here right now. Are you understanding, church? क्या समझ रहे कलीसिया? Are you understanding? Everything has to be ordained by God. हर एक चीज परमेश्वर के द्वारा अभिषेक की गई। Everything has to be ordained by God. हर एक चीज परमेश्वर के द्वारा अभिषेक की गई। You know, God is not sitting in heaven and holding dice in his hands. Oh, let me throw some dice and let me see what I can do with my son Manish in his life. और परमेश्वर स्वर्ग में बैठ के जो है डाइस लेके नहीं बैठा कि मैं फेंकता हूँ फिर देखता हूँ कि मनीष के जीवन में क्या कर सकता हूँ। He is not doing like that. वो ऐसे नहीं कर रहा। हाँ, 6 आएगा तो चलो ये करते, 5 आएगा तो चलो ये करते. He is not sitting. Everything God is telling. Can I tell you? प्रभु अभी कुछ प्लान नहीं कर रहा है बैठ के, आपको भेजने से पहले प्लान कर दिया है, समय बुकिंग हो चुका है. Are you understanding? क्या समझ रहे आप में से कुछ लोग को लगता है कि प्रभु बैठ के प्लान कर रहा होगा अभी मेरे लिए. हेलो, ब्रेकिंग न्यूज, द प्लान इज ऑलरेडी डन, द पर्पस इज ऑलरेडी सेट इवन बिफोर you were formed in the mother's womb, even before you were a fetus, the plan is already fixed. और वो मकसद आपको पहले से दिया गया है, आपके माँ के गर्भ में आने से पहले आपको वो दिया गया है। Are you understanding? क्या It समझ is रहे हैं? preordained. वो आपको पहले से अभिषेक किया गया है। No matter how much you run the compass, how many of you know compass? कितना को कंपास पता है? हाँ, कितना भी घूमा वो नॉर्थ के पास ही रहेगा. हाँ, उसका कांटा जो होता है वो कितना भी उसको घुमा, अरे ये इधर ही क्यों जाता है. How many of you know Jonah? Jonah, the purpose of God was for him to reach Nineveh. और योना के जीवन में उद्देश्य ये था कि वो निन्वे में पहुंचे, बट बेचारा शिप में गया, भागा वहां से, तूफान आया वहां से, और जैसे ही उसने बोला ठीक है मुझे डाल दो तुम पानी में, the moment he was thrown in the water, जब उसे पानी में डाला गया the storm stopped over there. तो वो तूफान रुक गया। The moment you step into your purpose, the storms of your life will stop in Jesus' name. जब आपके जीवन के Hey, उद्देश्य में are you कदम रखते हैं, तो understanding? आपके तूफान The रुक जाते हैं। moment you step into the purpose of God, जब आपके उद्देश्य में आप कदम रखते हैं, the moment when you are supposed to be here, but you are here, the moment you are here,
the storm will stop because now you are in the purpose of God. जब आप सही जगह पे सही परमेश्वर के उद्देश्य में होते हैं तो आपके तूफान रुक जाते हैं। Then a big creature in the sea swallowed him. और एक बड़े जीव ने उसे निगल लिया। Now some people says that it is not whale, actually it is a big creature in the sea. और वो वेल मछली नहीं थी लेकिन एक कोई बड़ा क्रीचर था वो। Because whale's mouth is not that big, people of God. क्योंकि वेल का मुंह इतना बड़ा नहीं होता। So don't teach in Sunday school there was a whale fish. तो संडे स्कूल में ये मत पढ़ाएगा कि वो वेल फिश थी। That was some big creature in the sea. वो एक बड़ा प्राणी था। I don't know if you have studied about this. मुझे नहीं पता कि आपने इस बारे में पढ़ाई की या नहीं की। Okay. So that is for another day. Let's come back to this. The one problem with pastors, the moment they see one topic, then they start going there. I don't want to go there. Okay. Now my question to you is, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि योना को मछली के पेट में डालना, बेचारे को पानी में फेंकना, क्या परमेश्वर का प्लान था? Who will plan such thing for the Son of God? कौन ऐसे प्लान करेगा परमेश्वर के बच्चे के लिए? आज मेरे बच्चे को ढकेलता हूँ पानी में, आज मेरे बच्चे को मछली के पेट में डालता हूँ मैं. Will you plan like this? क्या आप ऐसे प्लान करोगे? But there is a maqsad behind that. लेकिन उसके पीछे एक मकसद था। So people of God, तो परमेश्वर के Jonah लोग। was going here. He was supposed to go here, लेकिन उसको वहां तक पहुंचाने के लिए वो टक्कर खाया. कितने लोग को वो टॉय कार पता है जहाँ पे ऐसा ऐसा घूमता है, ऐसा टक्कर मारेगा तो फिर इधर आता है? देखा आपने कभी डैशिंग कार? हाँ, डैशिंग कार, राइट? मेरे स्टेटस देखा रहेगा आपने बीच में, राइट? या व्हेन ऐसा टक्कर मारेगा तो फिर इधर टक्कर मारने के बाद फिर घूमता है, फिर इधर टक्कर मारने के बाद फिर से किधर और जाता है. देखा आपने? छोटा भी गाड़ी रहता है कभी कभी, वो फ्लोर क्लीनिंग का रोबोट भी रहता है, राइट? फिर बाद में इधर जाएगा, उसको लगता है ये मकसद है, इधर नहीं, टक्कर खाएगा फिर घूमेगा. ऐसे बहुत लोग होते हैं. Keep knocking, keep knocking, keep knocking until you reach a final destination. खटखटाते रहो जब तक तुम अपनी मंजिल तक ना पहुंचो। People of God, are you understanding? क्या समझ रहे परमेश्वर के लोग? We know, the purpose of God. That's why, sometimes we feel that, it is for convenience. अपने convenience के हिसाब से तो चलो ये भी purpose of God के जैसे दिख रहा है, तो उसके जैसे कुछ easy में जाते हैं, लेकिन actual purpose of God अलग होता है. Are you understanding, क्या church? समझ रहे कलीसिया? But God is merciful. परमेश्वर दयावंत है। Moses also missed when he was actually called to save Israelites. और जब मूसा को इजरायली लोगों को बचाने के लिए बुलाया गया He था, got married, वो शादी कर चुका, he committed murder, उसने मृत्यु कर a दी lot of time waste. और बहुत से समय उसने But व्यर्थ कराया। until one day, लेकिन एक दिन when he saw the burning bush, जब उसने जलती झाड़ी को he देखा, was aligned back to his purpose. वो फिर से अपने उद्देश्य में आ गया। Are you understanding, क्या church? समझ रहे कलीसिया? Are you understanding? क्या समझ रहे हैं? If you are in pain, अगर आप दर्द में हैं, thank God. परमेश्वर का I'm धन्यवाद। telling you, thank God. मैं आपसे कहता हूँ परमेश्वर का धन्यवाद, Because that pain is a sign that there is a purpose behind your pain. क्योंकि ये दिखाता है कि आपके जीवन में परमेश्वर का If उद्देश्य। you are in pain, अगर आप दर्द में हैं, thank God, that's why you are in church right now. इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि Because आप some of परमेश्वर you की कलीसिया wouldn't be में। in church if you had not gone through pain. अगर आप दर्द से नहीं गुजरते तो आप कलीसिया में भी नहीं आते। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते अगर दर्द नहीं होता जिंदगी में तो आप आज कलीसिया में नहीं होते. आपकी जिंदगी में दर्द आया तब जाके आप कलीसिया के द्वार को आपने देखा. So thank God for that pain which brought you in the house of God. तो परमेश्वर का धन्यवाद हो उस दर्द के लिए जो परमेश्वर के भवन में आपको लेके आया। Are you understanding, people क्या of समझ God? रहे कलीसिया? Oh, rakalana mashantere. Have you seen a tree where the trunk is of banana and the branches are of mango? क्या आपने कभी ऐसा पेड़ देखा है जो निचली भाग जो है उसका केले का है और ऊपरी भाग जो है मैंगो का है? देखा है क्या कभी? और अगर ऐसा ट्री है भी तो क्या वो फल दे पाएगा? नहीं दे पाएगा सही फल जिंदगी में, क्योंकि उसका नीचे का जो ट्रंक है वो बनाना का है और उसके जो फांदियां है वो किसके है? आम के है. तो ढंग का फल आएगा. ऐसे ही होता है जब हम परमेश्वर के उद्देश्य में नहीं होते हैं, फल नहीं आएगा जिंदगी में. Are you understanding? क्या समझ रहे हैं? So there is a strong purpose of God in your life. तो परमेश्वर का एक मजबूत उद्देश्य मकसद आपके जीवन में होना जरूरी है। So Jesus knew his purpose. तो यीशु मसीह को उसका मकसद पता था। He kept fulfilling all the prophecies. और वो सारी भविष्यवाणी को वो पूरा करता There गया। was a prophecy in the Old Testament that he will go to Egypt. He went to Egypt when he was a kid. और जब वो बच्चा था तो भविष्यवाणी हुई थी कि वो इजिप्ट में जाएगा, वो इजिप्ट में चला गया। He kept fulfilling all the prophecies. He was focused over there. और वो पूरी तरह से स्पष्ट था अपनी चीजों को लेके। Sometimes a closed door in your life
Is God saying to you that my son, this is not the right door? और जब आपके जीवन के कुछ बंद द्वार परमेश्वर ये बताता है कि ये सही द्वार तुम्हारे लिए नहीं है मेरे बेटे, I want to give you an example. मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ How does the purpose of God work? परमेश्वर का उद्देश्य कैसे कार्य करता Okay, है। I'm carrying something with me today. What is this? ये क्या है, What is this? क्या है ये? Come on, what is this? Okay, आम आदमी पार्टी नहीं है, मैंगो है ये. Okay? This is mango. ये आम है। My question to you right now is, और मेरा सवाल आपसे ये है कि how many seeds are there in this mango? इसमें कितने बीज होती हैं? Huh? One seed in this mango. इस आम में सिर्फ एक बीज होता है। I need someone's help who is very good at cutting the mango. Who can come? Shumangi, can you cut the mango properly? If you can, then only come. Otherwise, your hands will be messy. Yeah, come. Yeah. Now listen to me carefully. I'm showing you something. Don't worry, सबको एक एक घास मिलेगा. Okay. Now cut this mango. Okay, yeah, keep it over here. I'm showing you something, people of God, how the purpose of God is. I asked you one question first. और मैं आपसे सवाल किया था कि कैसे इस आम के अंदर कितने बीज है? दुबई कितने बीज है? एक. Okay, all right. Okay. So what I'm trying to ask you over here is, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि get the seed of the mango to me. Yeah. Yeah. Be careful. At the same time, be fast. Oh, Rakala Mashantere. I want to ask you meanwhile one more question. और एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, Which mango tree decides that today I'm going to be a mango tree? कौन सा आम का पेड़ ये सोचता है कि आज मैं आम का पेड़ बनूंगा? सोचता है क्या? सोच के बनता है क्या पेड़? नहीं बनता है, क्योंकि उसको ऑलरेडी प्री ऑर्डेन किया गया है मैंगो ट्री रहने के लिए. क्योंकि उसे पहले से अभिषेक किया गया है। हाँ, यस और नो? कोई ऐसा ट्री को देखा है आपने, ऐसे पेड़ को देखा है कि टुडे आई ऑर्डेन माई सेल्फ टू बी अ मैंगो ट्री? क्या कभी आपने ऐसे पेड़ को देखा है कि मैं आज आम का पेड़ बनूंगा? आपने देखा है क्या? ओके, ठीक है. ऑलराइट. गेट द सीड, जस्ट दैट्स इट. ओके, आई एम फाइन. आई विल लिक माई फिंगर्स, डोंट वरी. Okay. All right. The first question I asked you over here is, और सबसे सवाल जो पहले किया था, what was the first question? पहला सवाल क्या था? How many seeds are there in the mango? What was your answer? One. Okay. Dubai, what was your answer? One. Okay. All right. How many mangoes are there in this seed? इस बीज में कितने आम हो सकते हैं? Come on. Come on, be louder. How many seeds, how many mango are hidden in this seed? इस बीज में कितने आम हो सकते हैं? बोलो ना, शर्माओ मत. कितना, बिंदु सिस्टर बोलो? बहुत सारा. यस. आप गिनती लगा सकते हो? नहीं गिनती लगा सकते. This one seed इस एक can बीज में produce a tree वो पेड़ बनाता है, and then mangoes और फिर वो बहुत से आम बनाता and है, then many seeds और फिर बहुत से बीज, and then many mangoes. You have no count of it. और ऐसे बीज बनाता है जिसकी आप कोई गिनती नहीं कर सकते. But my another question is, लेकिन दूसरा सवाल आपसे ये भी है, can you see those mangoes now? क्या आप अभी वो आम देख सकते हैं? This is the purpose of God in your life, because that is already there inside you. क्योंकि ये सब चीजें उसके अंदर पहले से है. So when the mango goes through cutting, जब आम कटता है you cannot see that right now. तो आप उसे देख नहीं सकते. When the mango comes and जो ये सीड का कुछ भाव है अभी, कितने रुपए में बेच सकते हो इस बीज को? कोई नहीं खरीदेगा. लेकिन जब ये इस बीज को बोऊंगा और लाखों करोड़ों का माल आ सकता है. Hey, are you understanding, church? So your purpose is priceless. Say kala आपका charo उद्देश्य की monde. कोई कीमत नहीं है. And for that, और उसके लिए you have to be focused.
आपको ध्यान देना You है। may not see everything now, अभी फिलहाल आपको कुछ नहीं दिखता होगा, but stay focused. लेकिन ध्यान लगाओ, Stay focused. ध्यान लगाओ, There are so many mangoes hidden. क्योंकि उसमें There are बहुत से so आम, many fruits hidden, बहुत से फल उसमें which हैं, your children and their children and their children and their children shall bear and use and eat the fruit. Hallelujah. क्योंकि जो बच्चों के बच्चे वो आपके उस फल को प्राप्त करेंगे। One more question. एक और सवाल, I just had this mango right now. I cannot eat because I'm still fasting. Okay? I just cut this mango right now. मैंने इस आम को काटा It's very ripe, good looking, good color. और उसका बहुत सुंदर दिखने के लिए है और अच्छा। If the same mango I would have cut in the month of January, अगर मैं इसी आम को जनवरी के महीने में काटता would it taste the same? तो क्या ऐसे ही वो Why? स्वाद देता? Because the time is not ready yet. क्योंकि उसका समय नहीं था, The fruit comes in the right time. क्योंकि फल सही समय में आता है। Because if you try to eat it before time, क्योंकि अगर आप समय से पहले खाने की कोशिश it करते हैं will be bitter. वो कड़वा होता है। It's better to wait than to eat bitter. बेहतर है कि आप इंतजार करो कड़वा चीजें खाने से अच्छा। क्या आप समझ रहे हो मेरी बात को? How many of you are understanding? कितने लोग You may समझ पा eat रहे it हैं? if you want. Yeah. कितने लोग को समझ रहे प्रियो? I know many of you will have mangoes in the afternoon. मैं जानता हूँ बहुत से लोग आम खाने वाले। Oh, ralaba shantere yaramante. So people of God, if you are going through some sadness, अगर आप किसी नाराजगी से गुजर रहे हैं be happy तो because your आनंद मनाओ। purpose is paving the way for you. तो मैं आपसे कहता हूँ कि वो उद्देश्य आपको उस दर्द में से गुजर रहा है है। कुछ कांटे हैं उधर से आप कैसे तो करके निकल रहे हो, क्योंकि वो प्लान नहीं है, कांटे प्रभु का प्लान नहीं है, उद्देश्य मकसद ये है मेन परमेश्वर का आपकी जिंदगी में। How many for understanding कितने लोग church? समझ पा रहे हैं परमेश्वर के लोग? If you understand this, अगर आप इसे समझ पा रहे हैं I'm telling you many things, you will open your eyes to it. तो मैं आपसे कहता हूँ आपके लिए बहुत सी चीजों के लिए आपकी आंखें खुल जाएगी। May God open your eyes. परमेश्वर आपकी आंखों को खोले। Your real purpose is Jesus. आपका सबसे बड़ा उद्देश्य यीशु Because मसीह है। when you are in Jesus, क्योंकि जब आप यीशु मसीह में if होते you do हैं, not have purpose in life, अगर आपके जीवन में उद्देश्य ना हो I give you an invitation, come to Jesus. तो मैं आपको न्योता देता हूँ कि यीशु मसीह में आए, Because in Jesus there is real purpose. क्योंकि यीशु मसीह में सच्चा उद्देश्य In है। Jesus there is real purpose. यीशु मसीह में सच्चा उद्देश्य है। Hallelujah. Are you understanding, church? क्या समझ So रहे the हैं pain कलीसिया? when you don't fulfill the purpose, can I tell you, when you don't fulfill the purpose, मैं आपसे कहता हूँ जब आपके उद्देश्य को पूरा नहीं करते that pain is more bitter than the pain which you are going through it right now. और जो दर्द आप गुजर रहे हैं उससे भी भयानक दर्द आप उसमें से गुजरते हैं। So I do not want you to have that pain when you miss the purpose. तो मैं नहीं चाहता कि आप आपके उद्देश्य को खो के उस दर्द को महसूस करें। Right now the pain is there. अभी फिलहाल दर्द है, It's fine, you're coming out of it. कोई बात नहीं, उसमें से आप बाहर निकल रहे You're हैं, coming out of it. आप उसमें से बाहर निकल रहे हैं Because you're about to eat the fruit of your life. क्योंकि आप आपके जीवन के फल को खाने वाले हैं। Hallelujah. हालेलुया। So be focused. तो ध्यान लगाओ What God has called you to do. जिस चीज के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। When you have a purpose in life, जब आपके जीवन में उद्देश्य but होता when है you're high on your own plans, और फिर आप आपकी योजनाओं में you फंसे will रहते miss हैं the purpose of God. तो आप परमेश्वर के उद्देश्य को खो बैठते हैं। Shall we close our eyes to? आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। Thank you, Jesus. Saint Alaramante. Rekolo broshantalanamante. Hallelujah. Thank you, Jesus. This afternoon, the Lord says that I have preordained, predestined, pre-planned everything for you. परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि मेरी योजना तेरे लिए पहले से बनाई गई है। So don't be distracted because of your current pain. तो अपने अभी के दर्द को ध्यान में रखते हुए अपने ध्यान को भटकने ना दो। Oh. Finishing the race is the plan, not the purpose. You know, people of God, some of you say that I want to get married. कुछ लोग कहते हैं कि मुझे शादी करनी है, But what is the purpose of your marriage? लेकिन आपके उस शादी का उद्देश्य क्या है? Some of you say, I want to get rich. कुछ लोग कहते हैं कि मुझे अमीर बनना है, But what is the purpose of you getting rich? Do you have that purpose? लेकिन क्या आपका उद्देश्य है कि आप वो अमीर क्यों बनना चाहते हैं? Why you do is very important. ये बहुत जरूरी है कि The आप ये क्यों why करना in चाहते your life has to be clear. हैं। आपका वो
क्यों ये जरूरी है। What you do is not important, but why you are doing, what is your ultimate purpose, that is important. और जो कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन ये क्यों कर रहे हो ये इम्पोर्टेंट। Some of you are excited to do ministry, कुछ लोग उत्साहित होते हैं मेरी सेवकाई के लिए, but are you doing ministry just because of competition with some people, or what is the main purpose of your life? लेकिन आप सिर्फ सेवकाई किसी कंपटीशन के लिए कर रहे हैं या फिर आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। Some of you have entered the business by seeing someone else, but what is the real purpose of your business? आपने बिजनेस को जो है किसी को देख के शुरू किया, लेकिन आपकी बिजनेस का उद्देश्य क्या है। Oh, what is the purpose? What is the purpose, people of God? आपके उद्देश्य क्या है। What is the purpose behind your prosperity? आपकी समृद्धि का मकसद क्या है। Sela Rabandesh. मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। ओ मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। आइए सब जन खड़े हो जाए उसकी उपस्थिति में। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, ओ मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। ओ रब्बा शादा, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है,
the purpose in your life, इस समय मैं चाहता हूँ कि आप प्रार्थना करें। अगर आप आपके जीवन के उद्देश्य को खो or if बैठे, you're seeking the purpose of God in your life, या फिर आप उस उद्देश्य की तलाश में हैं, or if you know that this is your purpose but somehow you are distracted, या फिर आपको पता है कि आपके जीवन का मकसद ये है और फिर आप भी भटक चुके हैं, this is the time that you realign with God's purpose right now. ये समय है कि आप परमेश्वर के मकसद के साथ जुड़ जाएं। What is the purpose? The purpose is hidden in Jesus. आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? वो छुपा है यीशु मसीह में, It is hidden in Jesus. वो यीशु मसीह में छुपा है। The Lord shall open your eyes to see the purpose of your life. परमेश्वर आपकी आंखों को खोलेगा ताकि आप उस उद्देश्य को देख सकें। Oh, Reyananama Shandalanama. Come on, pray right now. Pray. प्रार्थना करें इस समय। Rekatalamante Rialamante. Oh, Ratalamante Relemanu. Because my God chose you even before you were formed in the mother's womb. क्योंकि मेरे परमेश्वर ने आपको माँ के गर्भ में होने से पहले And आपको He चुना, has set you apart, sanctified and ordained. Hallelujah. और परमेश्वर ने आपको अलग किया है, शुद्ध किया है। And when God ordains, और जब परमेश्वर आपको शुद्ध करता है, when God ordains and set you apart for certain things, जब परमेश्वर आपको शुद्ध करके अभिषेक करता है, you have to set aside your plans and focus on what God has that purpose in your life. तो आपको आपके योजना को छोड़ना है और उस उद्देश्य के पीछे चलना है जो Some of you परमेश्वर are ने too दिया है। focused on your own plans. कुछ लोग उस योजना के पीछे भागते हैं। आप में से बहुत लोग अपने खुद की योजना पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, लेकिन प्रभु ने जो उद्देश्य दिया, मकसद आपकी जिंदगी में दिया है, वहां से ध्यान भटक चुका है और आप दूसरों को खुश करने के पीछे हो। Be careful when God has set you apart and ordained for something. ध्यान दो कि परमेश्वर ने आपको शुद्ध किया है और अभिषेक किया है। Oh, Ralaba Shantalana Mante. And if you don't know the purpose of God still in your life, अगर आप परमेश्वर के उद्देश्य को अभी तक नहीं जानते हैं, cry out to God and say, Lord, show me the purpose what I have supposed परमेश्वर to से do in my मांगे कि life. परमेश्वर मुझे मेरे उद्देश्य को दिखा जो तो अपने जीवन में Because दिखा। there are a lot of things hidden in your purpose. क्योंकि बहुत सी चीजें आपके उद्देश्य में छुपी हैं। Infinite blessings hidden in your purpose. अनगिनत आशीषें आपके उद्देश्य में छुपे हैं। Just like when we see the seed, you cannot see how many fruits are hidden in it. जैसे हम बीज को देखते हैं कि जैसे उस बीज में कितने फल हैं हम नहीं जानते, But everything, the fruit of the color of the fruit, the taste of the fruit, the size of the fruit, everything is hidden in that seed. लेकिन वो उस फल का रंग, वो उसका स्वाद और सब चीजें उस एक बीज में फंसी So हैं। everything you need, your house, your property, the car and everything what you need, everything is hidden in that purpose only. जो प्रॉपर्टी, जो गाड़ी, जो सब चीजें आपको चाहिए, वो सब चीजें आपके उस देश में रखी हुई है। Everything is hidden in your calling. आपकी बुल्लहाट में सब चीजें रखी है। That's why the word says, follow me and all the things, seek first the kingdom of God and all the things will be added. और Hallelujah. इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि सर्वप्रथम परमेश्वर की राज्य की खोज करो और सब चीजें तुम्हारे पीछे हो लेगी। That's the true word, that first seek the kingdom and then all things, everything which you need, all the fruit, the size of the fruit, the color of the fruit, the quantity of the fruit, everything is hidden in that. Hallelujah. और मैं आपसे कहता हूँ परमेश्वर के लोगों, जो फल का स्वाद है, उसका रंग है, वो सब चीजें उस एक बीच में रखी हुई है। And the word says, taste and see how I am good. और Hallelujah. वचन कहता है कि चख के देखो वो कितना भला है। Oh, Ralabash, many of you are going to taste His goodness. Hallelujah. आज बहुत से लोग उसकी भलाई को चख के देखने I वाले हैं। prophesy over your life. मैं भविष्यवाणी करता हूँ आपके जीवन As के a man ऊपर, of God, परमेश्वर के दास होने के may you नाते taste how good the Lord is. आप Hallelujah. उसे चख के देखें कि वो कितना भला है। You shall taste His goodness in your life. आप उसकी भलाई को चख के देखेंगे। Not after many years, but now. I open that doors in Jesus' name. बहुत सालों के बाद नहीं, लेकिन अभी और अभी, और मैं उस द्वार को आपके लिए खोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में। The mercy of God is over your life. परमेश्वर की दया आपके ऊपर है। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दो, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। Come on, sing this. मुझ पर हुई है कृपा,
का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। हो मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। हो मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु। Thank you, Lord. Come on, keep hand on your heart and say that I will never ever miss what you have planned for my life. अपने दिल पे हाथ रखे कि प्रभु जो तूने मेरे लिए योजना बनाई मैं उसे कभी ना चूकूंगा। I will stick to the purpose and I will be focused on what you have called me to do. परमेश्वर मैं उस मकसद से जुड़े रहूंगा परमेश्वर, और वो सब चीजें करूंगा जिसके लिए तूने मुझे बुलाया है। No distraction, परमेश्वर कोई ध्यान भटकाना नहीं, no distraction. कोई ध्यान भटकाना I नहीं। shall be focused on what you have called me to do. परमेश्वर मैं ध्यान लगाऊंगा उन चीजों के ऊपर। Many of your focus are realigned today. परमेश्वर के लोगों आज बहुत से ध्यान आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं। Oh, Radabalanama Shandalanamande Aradabas. If you're doing ministry, what is the focus? अगर आप सेवकाई कर रहे हैं तो आपका उद्देश्य क्या है? Are you doing just for the sake of doing? या सिर्फ करने के लिए कर रहे हो, But is there a focus in your life? या फिर उसके पीछे एक उद्देश्य है? Is there a vision in your life? क्या आपके जीवन में कोई दर्शन है? If you're doing a business, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, are you doing just to see the profit, or is there some vision, some focus on what you are planning? या फिर आप सिर्फ कमाई के लिए कर रहे हैं, या फिर उसके पीछे कोई दर्शन है? Are you solving someone's problem? कि आप किसी की समस्या हल कर रहे हैं? Are you doing something which can benefit others? क्या कोई चीज आप ऐसे कर रहे हैं जो दूसरों के लिए फायदेमंद है? When you're doing job, जब आप जॉब कर रहे हैं, are you doing just for the sake of doing it? या फिर आप सिर्फ उसे करने के लिए कर रहे हैं, But is there a focus over या फिर there? उसके पीछे एक उद्देश्य है? Oh, that focus is important. वो फोकस होना जरूरी है। If there is no focus, you will end up doing everything and one day you will be drained. अगर वो फोकस नहीं हो तो आप वो सब चीजें करोगे लेकिन आप थक जाओगे। Not just physically, but spiritually you will be dried up. सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं लेकिन आत्मिक रूप से आप सूखे पड़ जाओगे। I want you to see the fruit in your life. मैं चाहता हूँ कि आप उस जीवन के फल को देखें। Hallelujah. Radabashandalanamande. Is your focus just on the giftings? कि आपके उद्देश्य सिर्फ वरदानों पे वरदानों पे है? है, Or is your focus also on the fruits of the Holy Spirit? या फिर वो आपका उद्देश्य परमेश्वर के आत्मा का उस फल के लिए भी है? Are you trying to build something just basis what you know, your talent? क्या आप आपकी टैलेंट के बुनियाद पे सब चीजें बनाना चाहते हैं, Or do you want to do on the foundation of God? या फिर आप परमेश्वर की बुनियाद के ऊपर से बनाना चाहते हैं? When you worship, जब आप आराधना करो, are you doing just because you can sing well or you can play well? या फिर आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आप अच्छा गाते हैं या फिर आप अच्छा What बजाते हैं? is the focus? आपका उद्देश्य क्या What है? is the focus? आपका नजरिया That क्या है? focus has to be clear. आपका नजरिया स्पष्ट होना जरूरी है। Oh, thank you, Jesus. I pray that may God open your spirit.